Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are safe and healthy. Today we are going to discuss about the microbial strain selection techniques. What are the techniques available for the selection of natural microorganisms, as well as if you do take a recombinant organism, then how to develop different kind of changes in the genome of the microbes. All these things we'll try to cover in this lecture. So first of all, what is strain? Strain is a genetic variation or a subtype of a microorganism, plant, and rodent. So a group of organisms of same species sharing certain characteristics not typical of the entire species but minor enough to permit classification as a separate breed or variety. सो द स्ट्रेन हम जब कहते हैं ना कि इस माइक्रोब के या इस वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रेन्स डेवलप हो गए हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इट शेयर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स of the species from which it is belongs, but it contains certain you can say characters which make them separate breed. ठीक है। अब जैसे ये जो कोरोना वायरस है, ये H1N1 से ही इसको रिलेट करते हैं, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इनिशियली जब ये कोविड आया है तो सबको लगा कि जो सार्स वाला वायरस है ये उसका ही मतलब वो ही है, लेकिन जब इसको स्टडी किया गया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिक उससे मिलती हैं, लेकिन बाकी चेंज है। सो ये नया स्ट्रेन, नया एक जेनेटिक वेरिएंट है। ठीक है, उसके अलावा सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेन हमारे पास क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। द क्लासिकल एग्ज़ाम्पल्स आर इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट यील्ड और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक बैक्टीरिया को की अगर हम बात करें तो उसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, बैसिलस सबटिलस, यीस्ट में कैंडिडा यूटिलस, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, Filamentous fungi में Penicillium roqueforti and Aspergillus niger. These are the different strains of a species. Next, plants. Strain is designated as a group of offsprings that are descendant from a modified plant produced by conventional breeding by biotechnological mean or result from genetic mutation. So they are the descendants of a modified plant, and that modification has been done by conventional breeding or by biotechnological means. Next, rodents, mouse or rat strain. They are all the animals that is genetically uniform. So microbes are preferred to plants and animals because they are generally cheaper to produce. Their enzyme content are more predictable and controllable because जो pathways हैं उतने complex नहीं होते। Otherwise animal and plants में जो pathways हैं वो बहुत ज़्यादा complex होते हैं। Enzymes जो हैं वो बहुत सारे different pathways में involve होते हैं। So the plants and animal tissue contain more potentially harmful material than microbes, including phenolic compounds from plants. So on these reasons, microbes are preferred for biotechnological manipulation. No doubt work is also going on plants and animals. So how to improve a strain? The science and technology of manipulating and improving microbial strain in order to enhance their metabolic capacity for biotechnological applications are referred to as strain improvement. जैसे कि आई डोंट नो आपको मैंने एग्जांपल बताई या नहीं बताई कि जो मिल्क के अंदर के अंदर क्वालिटी है, मिल्क के अंदर ये डाइट न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट की गई है कि जो मिल्क के का चीज़, मिल्क से जो चीज़ बनती है, मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके वो जो चीज़ प्रोसेस के लिए टाइम और कॉस्ट लगती है उसको रिड्यूस किया गया है। तो क्या किया गया उसके अंदर कि जो स्ट्रेन्स हैं उनको डेवलप किया गया ताकि जब वो मिल्क को फर्मेंट करें और उससे जो है वो चीज़ और वे बने, तो वो एक तो
ज़्यादा टाइम कम लगे उसके अंदर, जल्दी वो फर्मेंट कर जाए मिल्क। और दूसरा उसमें क्या होगा कि वो जो चीज़ बनेगी, वो कर्ड जो बनेगी, जो उसके अंदर से मतलब आप कह लें सॉलिडिफाई होगा कंटेंट, वो ज़्यादा फर्म होगा, ठीक है? ईज़ी टू मतलब हैंडल होगा। मतलब नॉर्मली जब आप दूध के से चीज़ बनाते हैं, तो जो आपके पास सॉलिडिफाइड टी मटीरियल आता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो ये क्वालिटी एनहांस की गई ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है? So this is called strain improvement. So what is the purpose of strain development? To relate individual cases to an outbreak of infectious disease. किसी इन्फेक्शियस डिजीज के आउटब्रेक के केस में इंडिविजुअल केसेस को रिलेट करने के लिए स्ट्रेन डेवलप किए जाते हैं कि एक स्ट्रेन अगर एक इंडिविजुअल में रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो दूसरे इंडिविजुअल में अगर हो रहा है, तो क्या उसके सिम्टम्स हैं और कॉज हैं। तो स्ट्रेन डेवलपमेंट का एक पर्पज ये भी होता है कि आप उसको डेवलप करें फॉर टू रिलेट different cases, then to establish an association between an outbreak of food poisoning and a specific food vehicle. जैसे सैल्मोनेलिसिस का एक आउटब्रेक बहुत 80s में आया था यूरोप में, ठीक है? या कॉलेरा का आउटब्रेक जब आया था यूरोप में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि रिलेट करने के लिए कौन से फूड व्हीकल्स हैं जो कि इस आउटब्रेक की वजह बन रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो किस फूड के थ्रू आउटब्रेक कॉज करवा रहे हैं, वो एसोसिएशन डेवलप करने के लिए स्ट्रेन डेवलपमेंट की जाती है। उसके अलावा वेरिएशन देखने के लिए इन द पैथोजेनिसिटी के एक माइक्रोब के अगर वेरिएंट्स हैं, तो वो कौन ज़्यादा विरुलेंट है और कौन सा कम विरुलेंट है, तो उसकी पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल स्ट्रेन की जो विद इन अ स्पीशी फॉल करता है, उसको स्टडी करने के लिए भी स्ट्रेन डेवलप किए जाते हैं, ठीक है? जैसे अब लैक्टोबैसिलस के कितने सारे स्ट्रेन्स हैं जो कि बने हैं ड्यू टू द इट्स एबिलिटी टू फर्मेंट मिल्क, ठीक है ना? तो इसी तरह से बैसिलस सबटिलस के इतने ज़्यादा बन गए, क्लोस्ट्रीडियम के इतने स्ट्रेन्स स्ट्रेन्स डेवलप किए गए हैं। किसी के अंदर कोई क्वालिटी एनहांस्ड है, किसी के अंदर जो है वो कोई दूसरी क्वालिटी एनहांस है। तो इस वजह से स्ट्रेन डेवलप किए गए हैं जाते हैं। देन टू ट्रेस द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर कंटामिनेंट्स आ रहे हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए भी स्ट्रेन डेवलपमेंट होती है कि जो स्ट्रेन आप यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रूट है, और उस रूट में फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। देन टू स्टडी द माइक्रोबियल इकोलॉजी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सच एज बायोफिल्म। बायोफिल्म की स्टडीज के लिए भी स्ट्रेन डेवलपमेंट होती है। टू कैरेक्टराइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए उनके डिफरेंट जो है ना, आप कह सकते हैं उनके अंदर डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी स्ट्रेन डेवलपमेंट होती है, जो कि हमारा बहुत कॉमन आजकल रिसर्च में एक्सपीरियंस होता है कि हम बहुत कॉमन है कि कोई भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं तो हम उसको कैरेक्टराइज लाजमी करते हैं कि इसके अंदर ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है ना? तो डिफरेंट माइक्रोबियल कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए स्ट्रेन डेवलपमेंट होती है। देन टारगेट ऑफ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेन इम्प्रूव जब आप कर रहे होते हैं, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ को टारगेट करते हैं? आप उसकी ग्रोथ, क्या आप चाहते हैं कि अगर एक माइक्रोब जो 20 मिनट में, जैसे कि जनरल एक नोशन है कि माइक्रोब जो है वो 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं, तो आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा स्पीड से हो, तो रैपिड ग्रोथ को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं उसके अंदर, उसको टारगेट आप कर सकते हैं। दूसरा जेनेटिक स्टेबिलिटी, कि आपको पता है ना माइक्रोब्स की जो जीन्स हैं वो प्रोन टू म्यूटेशन है, बहुत जल्दी म्यूटेट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत यूजफुल हैं, उनके अंदर जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो पैथोजेनिक ना हो जाएं। देन दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन। इफ सर्टेन स्ट्रेन्स आर वेरी बेनिफिशियल इन वन सेंस दैट बट दे डू हैव the property in them which make them harmful for humans, so that disease causing gene, or you can say the harm effect producing gene, must be removed from that microorganism in order to make it non toxic to humans. Are you following this? कि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो कन्वर्ट हो जाता है विरुलेंट स्ट्रेन में ड्यू टू हाई टेम्परेचर, लेट्स से।
सो हम क्या करेंगे, हम वो जीन आइडेंटिफ़ाई करेंगे जो उसको टॉक्सिक बना रही है, हम उस जीन को ही रिमूव कर दें, तो नॉन टॉक्सिक हो जाएगा, बाकी तो वो पूरा उसका जीनोम ह्यूमन्स के लिए बेनिफिट ही है। देन लार्ज सेल साइज़ फॉर ईज़ी रिमूवल फ्रॉम द कल्चर फ्लूइड। अगर हम चाहते हैं कि हम, चूँकि हमने फर्मेंटेशन करा ली है, हम जैसे सिंगल सेल प्रोटीन बना रहे हैं, तो हम प्रोटीन उसका सेल साइज़ बड़ा कर दें ताकि हम उसको कल्चर मीडिया में से ईज़िली रिमूव कर सकें। ठीक हो गया। देन हम क्या है, किस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं कि हमारे पास चीप सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं, माइक्रोब जो है वो उन चीप सबस्ट्रेट को यूज़ करने की उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप कर लें, हम इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस टारगेट्स on which strain improvement can be done. देन इसमें ये हो सकता है कि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कैपेसिटी अगर आप कह लें फ्यू मिलीग्राम्स में प्रोड्यूस करने की है एक सबस्ट्रेट, तो हम उसको एफिशिएंट बनाएँ, उसके स्ट्रेन को इस तरह इम्प्रूव करें कि वो जल्दी हमें प्रोडक्शन दे चीज़ की जो हम जब करना चाह रहे हैं। टू इम्प्रूव द यूज़ ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स, मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो दे आर व्हिच are beneficial for us. They are more specific toward the usage of carbon and nitrogen source, means they don't use all type of carbon and nitrogen source for their growth. So we can modify the microorganism to use, as I already told you, the cheaper sources of carbon and nitrogen. So to improve their usage of carbon and nitrogen, we target this strain for the improvement. Then reduction of cultivation cost, obviously cost कम करने के लिए भी strain improvement की जाती है, and for the production of additional enzymes, compounds to inhibit contaminant microorganism, इसके लिए भी जो है ये strain improve किए जाते हैं। देन देयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रेन सिलेक्शन, इनमें से हमने इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है या बेसिक मेथोडोलॉजी है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है। सो द स्ट्रेन सिलेक्शन मेथड की कुछ एग्जांपल है, लाइक बायोटाइपिंग, लाइक एज वी आई टोल्ड यू अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग इन विच वी पिक अप द डिफरेंसेस इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्ट्रेन्स बायोटाइप, मतलब एक स्ट्रेन जो है वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, कोएगुलेज नेगेटिव है, ठीक है, तो इस तरह से हम पिक कर सकते हैं। देन बैक्टीरियोसिन टाइपिंग कि एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की बेसिस पे हम मतलब एक माइक्रोऑर्गेनिज्म एक तरह की एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट बना रहा है और एक तरह की बना रहा है, तो हम उसकी बेसिस पे स्ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोटीन टाइपिंग कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है डिफरेंट स्ट्रेन से, उनकी बेसिस पे भी हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे माइक्रोब्स को। देन फेज टाइपिंग के वो जो वायरस जो उनको इफेक्ट कर सकता है माइक्रोब्स को, उनकी बेसिस उसकी इफेक्ट करने की बेसिस पे भी हम डिजाइन कर सकते हैं सिलेक्शन मेथड। Then how to optimize the microbial activity? It can be done by changing the environmental conditions. Then the other thing is by optimizing the nutrients of the microorganism. These are the two main parameters on which we optimize the microbial activity. मतलब हम माइक्रोब को मुख्तलिफ environmental condition, temperature, pH चेंज करके देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पे माइक्रोब की ग्रोथ मैक्सिमम आई है, तो दिस सेट ऑफ टेम्परेचर एंड pH इज वेरी गुड फॉर द माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो हम उसको फिर उस पर्टिकुलर चीज को फिर हम उसको अगले लेवल पे लेके जाते हैं, लैब स्केल से पायलट स्केल की तरफ। देन वी मूव टुवर्ड द इंडस्ट्रियल स्केल। लाइकवाइज ऑप्टिमाइजिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिएंट्स को भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उनको मुख्तलिफ सोर्सेज देके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीप सोर्सेज यूज करने हैं और वैरायटी ऑफ सोर्सेज हम उसको देते हैं और हम देखते हैं कि वो किसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बेटर ग्रो देते हैं, ग्रोथ करते हैं, फिर हम उसके ऊपर आगे मजीद काम करते हैं। उसके अलावा हम जेनेटिकली चेंजेस भी कर सकते हैं, वो मेथड जिसके अंदर फॉरेन डीएनए चेंज नहीं किया जाता, वो म्यूटाजेनेसिस कहलाता है, मतलब उसी एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आप करा रहे हैं। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप उसके अंदर फॉरेन डीएनए ऐड करें, विच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। So optimizing of environmental conditions include modification of physical parameters like temperature or agitation, etc. In which you provide the all of we know that different microbes grow on different temperature, and if they are aerobic then agitation is required, but if they are not aerobic or means they are anaerobic, then agitation is not required so much. It affects the growth of microorganisms. So the chemical parameters like pH, oxygen concentration, these parameters, they are also optimized, can also optimize for checking the growth of microorganism, and at these particular
parameters, then modification of biological parameters, like if there's an enzyme, need of an enzyme, or your microbe needs certain cofactors, coenzymes, they are also, their concentration can also optimized. So in this graph you can see that there are different percentages of lactose hydrolysis. The microbes, they are capable of hydrolyzing lactose. So this graph showing one of the parameter that the output of the microbial activity in percentage terms with the effect of time. So you can see with 5 per minute, within 5 minutes of the incubation, it gives more than 40% of hydrolysis. But as the time proceed, and it gives the maximum hydrolysis of lactose within 30 minutes. So these are the different in this manner, different parameters, they are represented in this manner in the form of graphs and pictures. Optimizing of nutrition of microorganism. Now, what nutrients can be optimized? Different carbon sources, like if the solution is containing bagasse, or you can say the agriculture residues which are left over of agricultural products, they can be utilized by microorganism. And then the nitrogen source in the form of nitrite, nitrate, or a complex of nitrogen mineral sources, these salts concentration, then precursors and enzymes if they need any. All of these nutrients can be optimized for the microorganism. Next is methods not involving foreign DNA, means mutagenesis. It's a process in which microorganism is given treatment to different mutagens, and in response to these mutagens, there are their genotypic, their genes. They got changed, and due to the change in genes, their phenotype or their appearance also affect. So in this process, but whatever is going on, it's only on its own DNA. There is no other DNA which is supplemented to this microorganism or these microorganisms. So there are different mutagenesis process: spontaneous mutation, direct mutation due to addition, deletion, and substitution, or point mutation. Then there are certain induced mutation, and some are the site directed mutations. Due to any of these process, change in the DNA of the microorganism can be done. So here is a list of some mutagens. Like if we talk about ionizing radiation or X-ray and gamma rays, they are the mutagens. So they what they do, they cause single and double strand breakage of DNA, and the impact on the DNA is kind of deletional or structural changes. And the effect due to these radiation is very high. Means if you give some microbe these radiations, like ionizing radiation, then the impact of these radiations is very high. Then there are UV rays and chemicals. They are also the mutagens, but what mutation they induce is that pyrimidine dimerization. They form the pyrimidine dimers, which you have studied in your nucleic acid course, or even in metabolism and molecular biology. So, what is the impact of this pyrimidine dimerization? That transversion, deletion, frameshift mutation from GC to AT. So, as the pyrimidine they got dimerized, so there are more conversion toward GC to AT. इसका रीजन भी वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन रीजन यही है कि पायरिमिडीन कौन से होते हैं बोला, थायोसिन और cytosine and thiamine. So cytosine, they get involved in dimerization process, and which leads toward the removal of subsequent removal of GC content from that part of the DNA, and more AT rich region it becomes. So the impact is medium. Then hydroxylamine, it is another mutagen. It causes the deamination of cytosine. Cytosine, when is deaminated, is converted into thiamine. So it converts GC, more thiamine will be there. So more AT content will be there in that portion where these deamination takes place. The impact is low. Then M-methyl and nitrosogonadine, they are also mutagen. They are called methylation of the bases and high pH. Again, there's a transition from GC to AT, high rich
जीसी से एटी की तरफ ज़्यादा चेंजेस हैं। इसकी रीज़न ये है कि जीसी जो है वो उसके अंदर सी में जब भी चेंज आएगी ना वो हमेशा टी बनाएगा, लेकिन टी के अंदर जो चेंजेस हैं वो टी का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? मतलब साइटोसिन के अंदर चेंजेस से थायमीन बन सकता है, लेकिन थायमीन के अंदर चेंजेस से साइटोसिन नहीं बन सकता, बल्कि वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ये म्यूटेजेंस तोड़ सकते हैं, ठीक है? नाइट्रस एसिड इज अनदर म्यूटेजन, ये भी डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन कराता है बाय डायरेक्शनल ट्रांजिशनल डिलीशन। एटी से जीसी या जीसी से एटी बन सकता है, दोनों चांसेस हैं, मीडियम इफेक्ट है इसका। देन फेज, प्लाज्मिड्स, डीएनए ट्रांसपोजिंग, इन सबसे सबसे बेस सब्स्टिट्यूशन होती है और ब्रेकेज इन द डीएनए, देन इट कॉज deletion, duplication, insertion, and the impact is high. Ethyl methane sulfonate, it's also cause the alkylation of the bases, especially cytosine and adenine. So here the transition is from GC to AT, and the impact is also high. So these are the different mutagens which are used to cause mutations of different types, side directed or you can say spontaneous or deletional or additional insertional type of mutations. So after the mutation is get exposed to the microorganism, how we can select that microbe? So for exposing organism to the mutagen, the organism undergo mutation should be in the haploid stage during the exposure. The use of haploid is essential because many mutant genes are recessive in comparison to the parent or wild type gene. So आप haploid stage पे जो है ना expose करते हैं mutagen को, and the bacterial cells are haploid in fungi and actinomycete. The haploid stage is found in the spores only. So in these stages, these mutagens can apply. Then comes the screening of the microbial stain after mutagenesis. Then as random screening हो सकती है after inducing the mutation. Survivor from the population are randomly picked and tested for the ability to produce the metabolite of interest. आप म्यूटेशन के बाद जो है रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलोनीज कोई सी भी जो अपेयर हो रही हैं, ठीक है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज मस्ट बी टेस्टेड। इसके लिए आपको रैंडम स्क्रीनिंग में हमेशा जब भी रैंडम स्क्रीनिंग आप किसी भी पॉपुलेशन की करते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ जो आपकी कॉलोनीज हैं या नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स जो आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा होंगे। एडवांटेज इसका क्या है? मिनिमल स्टार्टअप टाइम एंड सस्टेनिंग फॉर ईयर्स, मतलब आपको जल्दी से आप इसमें स्टार्टअप तो कर लेते हैं, लेकिन दिस प्रोसेस ऑफ रैंडम स्क्रीनिंग इट्स सस्टेन्ड फॉर ईयर्स। डिसएडवांटेज क्या है जी? नॉन टारगेट एंड नॉन स्पेसिफिक है, आप किसी स्पेसिफिक ट्रेट को और एट्रीब्यूट को नहीं चेक कर रहे। रैशनल स्क्रीनिंग क्या होती है? रैशनल स्क्रीनिंग requires some basic understanding of product metabolism and pathways regulation, which gives information about metabolic checkpoints and suggests why to isolate and suggests ways to isolate mutants with specific traits. मतलब रैशनल स्क्रीनिंग में ये है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट की मेटाबॉलिज्म को चेक करना है और किस पाथवे को, आप उसके पाथवेज फिर आपको पता होंगे कि अगर कोई सबस्ट्रेट इस तरह का आपने दिया हुआ था और उसका आउटकम या म्यूटेशंस के बाद आपने उसको इस तरह के सबस्ट्रेट पे ग्रो कराया जहाँ पर वो या तो सिर्फ सर्वाइवर्स ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सर्टेन न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? अगर तो वो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी डेफिशिएंसी थी तो फिर इसका मतलब है ये सर्वाइवर है, इसके अंदर चेंजेस आए हैं, उसको आप फिर उसको आप लेके आगे टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से फिर म्यूटेंट जो है डिफरेंट ट्रेट्स वाइज आप आइसोलेट करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर, एरेशन, इन सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं और केमिकल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं कल्चर मीडिया के, ताकि जो सिलेक्टेड म्यूटेंट्स हैं ना विद डिजायर्ड ट्रेट उनको आप चेक कर सकें। रैशनल स्क्रीनिंग की एप्लीकेशन कहाँ है? सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, मतलब वो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस मतलब माइक्रोब्स के अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीन्स होती हैं, ठीक है? अगर आपने उनको टारगेट किया है या आपको पता है उसकी इसकी नेचर पता है रिएक्शन की, और या आपने लिटरेचर स्टडी किया हुआ है, आपको पता है कि ये वाला जो म्यूटेजन है वो इस टाइप ऑफ जीन्स को डिसरप्ट करता है और आपकी एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो इसी टाइप ऑफ जीन्स में फॉल करती है, तो फिर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर तो आपका माइक्रोब ग्रो कर जाएगा मीडिया के ऊपर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इस एंटीबायोटिक का तोड़ मौजूद है, वो रेजिस्टेंट है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। देन सिलेक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी, आप प्लेट के ऊपर मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कॉलोनी की कि क्या है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। दूसरा सिलेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, अगर वो कोई स्पेसिफिक डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है माइक्रोब तो उस बेसिस पे रैशनल स्कैनिंग आप कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ ओवर प्रोड्यूसर्स ऑफ अ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स, कोई भी बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर की ओवर प्रोडक्शन जो है उसके बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब बाकी ये स्क्रीनिंग मेथड वही मोर और लेस वही है जो मैंने आपको पहले बट नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ये दैट यू नीड टू dilute your sample size and you need to have 50 to 100 colonies per plate, and the selection is greatly facilitated by relying on the morphology of the mutant or some selectivity in the medium. हाँ मतलब morphology पे फोकस करते हैं कि आपकी कॉलोनी की क्या morphology आ रही है, पाउडरी है, स्लाइमी है, शाइनी है, ग्लॉसी है, क्या है, ठीक है। So when morphological mutants are selected, the desired mutation may be प्लियोट्रॉपिक। वो कंडीशन जब आप मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स का की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हैं, तो इट मींस कि जो म्यूटेशन हुई है वो प्लियोट्रॉपिक है। एंड प्लियोट्रॉपिक मींस अ म्यूटेशन इन विच चेंज इन वन प्रॉपर्टी इज लिंक्ड विद अ म्यूटेशन इन अदर कैरेक्टर। मतलब एक प्रॉपर्टी में चेंज होने की वजह से वो दूसरे कैरेक्टर में भी शो हो रहा है। और इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन यील्डिंग स्ट्रेन्स ऑफ पेनिसिलियम कार्सोजेनम। तो पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम की जो पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है उसके अंदर जो म्यूटेशंस की कॉज की है वो क्लासिकल एग्जांपल है इस चीज के अंदर। आफ्टर इरिडेशन स्ट्रेन्स ऑफ पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम विद स्मॉलर कॉलोनीज एंड वर बेटर प्रोड्यूसर्स ऑफ पेनिसिलियम। मतलब कॉलोनी जब म्यूटेशंस की गई, रेडिएशन दी गई इस ऑर्गेनिज्म को, तो इसका जो फर्दर म्यूटेंट बने वो स्मॉल कॉलोनीज थी, और वो म्यूटेंट जिनकी स्मॉल कॉलोनीज थी एंड दे आर द बेटर प्रोड्यूसर ऑफ पेनिसिलिन। सो इन ऑन दिस बेसिस you can select your mutant. Then selectivity by media. It is desired to select for mutant able to stand a higher concentration of alcohol, antibiotic, or other chemical substances than the desired level of material is added to the medium on which the organisms are plated. Only mutants able to survive the higher concentration will develop. मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना म्यूटेंट सेलेक्ट करने के लिए हायर कंसंट्रेशन दे रहे हैं किसी भी सबस्ट्रेट की, चाहे वो कोई अल्कोहल हो, एंटीबायोटिक हो, ये इट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप ले सकते हैं, उसकी आप डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा क्वांटिटी आप डाल दें तो वही म्यूटेंट ग्रो करेंगे जो कि हाई कंसंट्रेशन पे डेवलप हो सकते हैं। Most of the bacteria might well grow on 1 to 2% concentration of this substance. However, as the concentration increases, the number of surviving organisms will decrease. क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मीडिया और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते. So the concentration of the toxic pollutant could be gradually increased in the growth medium, thus screening the selected resistant one. This method is called acclimatization. So, acclimatization is a process in which the microorganisms gradually develop its, you can say, adaptability toward the changing media. So that is called acclimatization. Screening must be carefully carried out with statistically organized experimentations to enable one to accept with confidence any apparent improvement in the producing organism. So आपने ये बहुत ज़्यादा चूंकि आपके पास values वाली चीज़ है, and you need to establish some statistical experimentation to get confidence on your results. So on this note, this is first part of our isolation of selection of strains with regard to the improvement. If you have any question up till now, you are welcome to ask. Thank you so much, students, for your time. Allah Hafiz.